Hello students, today we will see new point trial balance. This is the final stage of our accountancy. Within last lecture we discussed journal entry, subsidiary books, ledger posting, cash book how to prepare, balancing the ledger accounts. Today we discuss the next stage after ledger accounts. The next stage is our trial balance. Trial balance is another word called तेरिस पत्रक या परीक्षा सूची उसे कहा जाता है. Into this trial balance we discuss meaning and definition of trial balance, features of trial balance, utility of trial balance, and role of trial balance in our accountancy. What is the role of trial balance in our accountancy? We discuss into this lecture trial balance. When you preparing the final accounts, before we calculate the debit balances of and credit balances of ledger accounts. So trial balance play important role to preparing of final accounts. अंतिम लेखे जो आप प्रिपेयर करते हैं द हेल्प ऑफ द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस के बेसिस के ऊपर क्या करते हैं आप? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स. वी हैव टू प्रिपेयर द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट. Trial balance is not an account, it is a statement. The statement of all debit and credit balances. It is called trial balance. Into this lecture we discuss only one word, trial balance. तेरिस पत्रक उसे हिंदी में कहा जाता है. How to prepare trial balance and specimen of trial balance. And also we see into this lecture टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. जनरल फॉर्म में जो टाइप्स उसका है ट्रायल बैलेंस का वो देखने वाले हैं, और लेजर फॉर्म यानी वर्टिकल फॉर्म एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस वी डिस्कस नाउ इनटू दिस लेक्चर. एंड अगेन वी सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस. You have to write down the debit balances list and credit balances. Debit and credit balances की लिस्ट पूरी मैं आपको लिख कर देने वाला हूं. Again we have to see the first topic जो आपके हुए थे, जर्नल एंट्री, उसमें रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो आपके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट्स. Again we have to see into this lecture trial balance. रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, यानी पर्सनल इंपर्सनल अकाउंट जो आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अपने देखे, एंड नॉमिनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट का रूल्स आपको फॉलो करना है, रियल अकाउंट का रूल्स आपको फॉलो करना है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स आपको फॉलो करना है. यानी डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट द गिवर, एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम. वी सी द list of debit and credit balances of, we should follow the rules of accountancy, personal accounts, real accounts and nominal accounts. What did personal accounts say, what did real accounts say, and what did nominal accounts say? We see the rules of accountancy and prepare the trial balance. So into this lecture we discuss preparation of trial balance. Why trial balance is prepared? Definition and meaning of trial balance, features, purpose of trial balance. ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के पीछे का पर्पस क्या, उद्देश्य क्या होता है, इस बेस के आधार पर आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, फॉर्म ऑफ या स्पेसिम ऑफ ट्रायल बैलेंस, कंटेंट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में कौन सी कंटेंट्स होते हैं? डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस में डेबिट बैलेंसेस, विच टाइप्स ऑफ बैलेंसेस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंसेस, एंड विच टाइप्स ऑफ बैलेंसेस इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंसेस. इसमें डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंस के बारे में
यहाँ पर एक लिस्ट आपको मैं आपको देने वाला हूँ इस लेक्चर के अंदर, वी सी इन डिटेल्स. बट बिफोर वी सी द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू नो द फाइनल balances of every accounts. When you close the ledger balances, when you close the ledger accounts, we find out the balance carried down and brought down to the opposite side brought down. That balance is taken from the preparation of trial balance. Trial balance prepare करते हैं तो वो balance brought down आपको डेबिट में brought down, the डेबिट में ट्रायल बैलेंस आपको उस बैलेंस को लेना पड़ता है. क्रेडिट में brought down तो क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस में आपको उस बैलेंस ब्रॉट डाउन वो बैलेंस आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ता है. इस लेक्चर में देखेंगे एक एग्जांपल में आपको यहाँ पे बताने वाला हाउ टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस इज द फाइनल लिस्ट ऑफ बैलेंसेस टोटल एंड कंबाइन इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस. उसे ट्रायल बैलेंस कहा जाता है. इसलिए ट्रायल बैलेंस एज शेड्यूल द लिस्ट ऑफ दोज balances are debited, those balances are credited, that is the list of debit and credit balances is called as trial balance. Trial balance is a schedule और उसे कहते हैं लिस्ट ऑफ दोज डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस अकाउंट्स. वेरियस अकाउंट्स में हम एक्सट्रैक्टेड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस अकाउंट्स इन द लेजर एंड बैलेंसेस ऑफ कैश इन हैंड एट कैश एट बैंक एज शोन बाय द कैश बुक आर आल्सो कॉल्ड इंक्लूडिंग दिस ट्रायल बैलेंस. वी सी द लेजर पोस्टिंग. लेजर अकाउंट्स में क्या करते थे? ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इनटू द लेजर अकाउंट्स. कैश ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इनटू द लेजर अकाउंट्स. व्हिच यू प्रिपेयर सेपरेटली कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. But into this trial balance, all ledger accounts are included balances into this trial balance. So, trial balance prepare. Trial balance as a schedule of list of those debit and credit balances, including cash and bank balances also. Those debit and credit balances of various which are extracted from various accounts in the ledger balances of cash in hand and cash at bank is shown by the cash book are also included it into this trial balance. So trial balance may be prepared the loose sheet of a paper. It is a loose sheet of paper. We prepare the debit and credit balances. We make the list of debit and credit balances into this loose of paper. ये loose sheet of paper जो आपका होता है उस इसे कहा जाता है trial balance may be prepared the loose sheet of a paper. All accounts with their डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस आर लिस्टेड सीरियली. सीरियली आप पूरी लिस्ट वहां पर राइट डाउन करते हैं. डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस, इसमें आपके एसेट्स रिलेटेड, लायबिलिटीज आपके, फंड्स आपके हैं, इनकम है, एक्सपेंसेस है. ऑल लेजर बैलेंसेस आर विच वी सी द बैलेंस इन देम एंड वी बैलेंस अकाउंट दैट बैलेंस आर पुट इनटू द ट्रायल बैलेंस. सो इसे इसलिए इसे कहा जाता है कि इट विल बी प्रिपेयर इन द लूज शीट ऑफ ए पेपर. लूज शीट ऑफ ए पेपर में उसको प्रिपेयर किया जाता है. इट मे बी प्रिपेयर ऑन द लूज शीट ऑफ ए पेपर. ऑल अकाउंट्स विद देयर डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस. ऑल अकाउंट देयर डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस आर लिस्टेड सीरियली. सीरियली आप पूरे उसको लिस्टेड करते रहते हैं. इट इज लिस्टेड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस. बैलेंस ब्रॉट डाउन. डेबिट में आए तो आप क्या लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. डेबिट में आपको ब्रॉट डाउन करना तो आप लिखते हैं डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. और क्रेडिट में आपको ब्रॉट डाउन करना तो लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डीडी फॉर ब्रॉट डाउन. ये जो ब्रॉट डाउन की बैलेंस है दैट बैलेंस आर टेकिंग फ्रॉम प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस. जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते वक्त आप ये बैलेंस को ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में लिखते हैं. डेबिट में डेबिट ब्रॉट डाउन का बैलेंस लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस का. क्रेडिट बैलेंस जो आपका होता है लेजर का वो क्रेडिट बैलेंस का ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में आपको लिखा है क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस ब्रॉट डाउन ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में आपको लिखा है, लेजर की क्रेडिट साइड में आपका ब्रॉट डाउन होता है. और लेजर अकाउंट के डेबिट में आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जब करते हैं तो ट्रायल बैलेंस की जो डेबिट बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस की लिस्ट में आपको ब्रॉट डाउन का बैलेंस आपको लिखना. बोथ साइड्स आर इक्वल. वी सी व्हेन यू pass the necessary general entry into the ledger and post them, balance the ledger accounts, and then balance will be calculated, brought down, which will write down the debit side of trial balance and credit side of trial balance, which will write down, which will tally the total of trial balance. So it is a statement of debit and credit balances, the basis of
लेजर लेजर अकाउंट जो आप क्लोज करते हैं लेजर अकाउंट के बेसिस के ऊपर इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसलिए इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, इसलिए इट इज स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस स्टेटमेंट भी ट्रायल बैलेंस को कहा जाता है। द पर्पज ऑफ इट इज एस्टेब्लिश्ड अरिथमेटिकली एक्यूरेंसी of the transactions recorded in the books of accounts. Accounting accuracy, the mathematical accuracy जो है which we see when we prepare the trial balance. So it does not prove the accounting accuracy. Trial balance does not prove the accounting accuracy which can be determined by audit. Determine the audit. It cannot be account. It is only statement of account. It is cannot be account. Trial balance is not account. It is a statement of account. So it is not a part of process of account. It is not a part of process of account. It is only a loose sheet of a paper. All accounts with their debit and credit balances are listed serially into this trial balance. So it is not a part of process of account. It is usually prepared एंड ऑफ द ईयर। आपको जो फाइनेंशियल ईयर आपका है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज आवर अकाउंटिंग ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर में इसको प्रिपेयर किया गया, prepared in that financial year. That financial year is included 12 months. 12 months period is called as accounting year. 1 year. 1 year के period में इसको प्रिपेयर किया जाता है। It is not a part of the process of account. It is usually prepared at the end of the year. It can be also prepared anytime as and when required to. इसे कभी भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं हाफ ईयर में, हाफली आप इसको प्रिपेयर करते हैं 6 मंथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, 1 ईयर में प्रिपेयर कर सकते हैं या 1 मंथ में। इसलिए ट्रायल बैलेंस एनी टाइम विच यू प्रिपेयर, it is usually prepared the end of the year, but it can be also prepared anytime and when required for half yearly, quarterly and monthly, 6 month, 3 month and 1 month। 6 month का ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं, क्वार्टरली यानी 3 months का प्रिपेयर कर सकते हैं and 1 month, and mostly prepare in after 1 year, after financial year period is 12 month period. But in case it is usually prepared at the end of the year, it can be prepared anytime. Halfly means 6 months, quarterly means 3 months, and monthly which we prepare the trial balance when needed. It serves the link between the books of accounts and we prepare in the basis of trial balance, trading account, profit and loss account, net balance sheets. That is the importance of our trial balance. When we prepare the trial balance, every businessman have prepared trial balance the basis of ledger balances. Ledger balances के आधार पर आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। So how to prepare? Preparation of trial balance. Trial balance किस तरह प्रिपेयर किया जाता है? We see in next point how to prepare trial balance. Trial balance किस तरह प्रिपेयर किया जाता है? Which types of transactions are recorded into this trial balance? Trial balance is a statement. It is not an account. It's a list of debit and credit balances. So how to prepare trial balance? Trial balance किस तरह प्रिपेयर किया जाता है? We see in next point preparation of trial balance. Preparation of trial balance. Preparation of trial balance. How to prepare trial balance? First we see transactions. ट्रांजेक्शन जो होते हैं, ट्रांजेक्शन की बेस के ऊपर आप क्या प्रिपेयर करते हैं? जर्नल एंट्री आप प्रिपेयर करते हैं या सब्सिडरी बुक्स सब डिवीजन ऑफ जर्नल। इसके बाद में प्रिपेयर करते हैं लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स के ऊपर बाद में प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। And the steps of our transactions.
ट्रांजेक्शन की जो स्टेप्स आपके ट्रांजेक्शन, उसके बाद में जनरल एंट्री पास करते हैं, लेजर फॉर्मेट। इसी तरह फॉर्म ऑफ जर्नल, फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री, फॉर्म ऑफ जनरल एंट्री आपको मालूम है, पहला डेट का कॉलम कर रहता है, डेट पर्टिकुलर, यहां पर से आप कहां ट्रांसफर करते हैं एंट्री, लेजर को पोस्टिंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो आपका कॉलम होता है, यहाँ पे आपका एलएफ का कॉलम होता है, लेजर फोलियो नंबर आपका होता है, उसके बाद डेबिट अमाउंट इन रुपीज, डेबिट अमाउंट इन रुपीज एंड क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। यहाँ पे द फॉर्म ऑफ जर्नल, यहाँ पे आप ईयर लिखते हैं, ईयर आपका, उसके बाद मंथ और डेट। ईयर सपोज आपका 2021 है, मंथ आपका समझो अप्रैल है, और डेट है सपोज आपकी 24। ईयर 2021, मंथ आपका अप्रैल, ये आपका ईयर होगा, ये आपका मंथ, और आपकी डेट 24, ये आप अभी मेंशन करते हैं, और राइट डाउन पास एंट्री दिस फॉर्म ऑफ लेजर। इसको आप क्या करते हैं, बाद में इसकी टोटल करते हैं, टोटल ये आपकी कोई फर्स्ट स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गई, उसी पास जनरल एंट्री। सेकंड स्टेप क्या आपकी, ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स आप ओपन करते हैं, लेजर अकाउंट्स आप ओपन करते हैं, ईच एंड एवरी आइटम्स। डेबिट साइड में 4 कॉलम, क्रेडिट साइड में 4 कॉलम आपके होते हैं। डेबिट में आपकी 4 कॉलम होता है, पहला कॉलम होता है आपके डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड ऑफ दैट अकाउंट्स। टी फॉर्म फॉर्मेट आप यूज करते हैं हमेशा। पहला कॉलम आपका रहता है डेट का, यहां से इधर डेबिट साइड, इधर क्रेडिट साइड। दूसरा पर्टिकुलर, उसके बाद में जब कॉलम होता है जनरल फोलियो नंबर आपका होता है, जीएफ, जीएफ का फॉलो करते हैं, यानी पर्टिकुलर यहाँ पे आपका एलएफ का नंबर होता है, लेजर फोलियो जनरल के अंदर, लेजर के अंदर आपका जीएफ का नंबर होता है, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। ये हो गया आपकी डेबिट साइड, डेबिट साइड में 4 बार 1 2 3 4, इसके बारे में डिस्कस किया था हमने। उसके बाद यहाँ क्रेडिट साइड में और सेम कॉलम, डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर, बाद में जीएफ जनरल फोलियो नंबर, और डेबिट अमाउंट इन रुपीज, डेबिट अमाउंट इन रुपीज, आपका क्रेडिट साइड अमाउंट इन रुपीज। इसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी आपको डेट आपको लिखना पड़ता है। सपोज आपका ईयर है आपका 2021, मंथ है आपका अप्रैल, डेट है सपोज 24, डेबिट में आप 2 लगाते हैं, क्रेडिट में 12 लगाते हैं। यहाँ पे भी आपको डेट लिखना पड़ता है 2021 अप्रैल, जो डेट होगी वो डेट यहाँ पे मेंशन करते हैं, 24 तो 24, 23 23। डेबिट में जब ट्रांसफर करते हैं तो 2 लिखा जाता है, कस्टमर वर्ड, एंड क्रेडिट में 12 लिखा जाता है। डेट में यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, बाद में उसका बैलेंस आप कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस दे, जब एंट्री खत्म होती है उसका बैलेंस निकालते हैं। क्रेडिट में सपोज आपका बैलेंस है तो उसे बोलते हैं बैलेंस, बैलेंस सीडी बोलते हैं उसे, और ये बैलेंस है आप कैलकुलेट करते हैं। जो हैश टोटल को हैश टोटल आप मेक करते हैं, बाद में उसको क्रेडिट में लिखते हैं, और जो डिफरेंस आया उसे बोलते हैं बैलेंस सीडी। ये जो बैलेंस सीडी आप वहां पे ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, डिविडेड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेट नेक्स्ट अप्रैल के बाद में कौन सा मंथ आता है, मई, फर्स्ट मई को उसको ब्रॉट डाउन करते हैं, नेक्स्ट डे का पहला तारीख आपको लिखते हैं, नेक्स्ट मंथ का बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स जो अमाउंट आपका है वो लिख देते हैं। इसे कहते हैं बैलेंसिंग द लेजर। सपोज ये लेजर अकाउंट सेकंड है, सपोज लेजर अकाउंट सेकंड है, ये एक्स का अकाउंट, ये वाई का अकाउंट में। यहां पर आप सेम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर्स, जीएफ जनरल फोलियो नंबर, अमाउंट इन रुपीज। ये हो गया आपकी डेबिट साइड, ये डेबिट साइड, और सेम कॉलम क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर, जीएफ जनरल फोलियो नंबर, और अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। ये आपकी होगी क्रेडिट साइड। यहां पर भी सेम
ईयर, मंथ एंड डेट। यहां पर भी डेट में ईयर, मंथ की क्रेडिट साइड आपकी और डेट। डेबिट में 2 लिखते हैं, क्रेडिट में बाय लिखते हैं। इसको क्लोज करते बाद में क्लोज द अकाउंट्स। सपोज ये अकाउंट आपका डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाता है। यहाँ पे फर्क आपके यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तो उसे कहते हैं टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन। ये जो बैलेंस आपका आया समझो 0x आपका बैलेंस है, वो आप नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ आपको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू नेक्स्ट मंथ। अप्रैल के बाद में कौन सा था, सपोज आप अप्रैल मंथ है आपका, तो बैलेंस आपका आप ब्रॉट डाउन करते हैं मे फर्स्ट बाय, क्रेडिट में बाय लगाते प्रत्येक बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस बी ऑब्जेक्ट डी ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस इधर आप क्या करते हैं, ब्रॉट डाउन करते हैं। यहां पर कैसे क्रेडिट में डिफरेंस आया तो डेबिट में ब्रॉट डाउन किया, और डेबिट में डिफरेंस आया तो क्रेडिट में आपने ब्रॉट डाउन किया। ये जो बैलेंस है डेबिट और क्रेडिट ब्रॉट डाउन की बैलेंस, ये आपको ट्रायल बैलेंस में लेना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस, व्हेन यू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं डेबिट बैलेंसेस जो होते हैं, इट इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। सपोज एक्स का अकाउंट है, एक्स का आपका कितना कौन सा आया, डेबिट बैलेंस है एक्स अकाउंट। एक्स का आपका अमाउंट कितना है, डेबिट का अमाउंट आपका एक्स अमाउंट है। वाई का आपका क्रेडिट में आया तो वाई का आपका क्रेडिट में आएगा वाई, ये एक्स और ये वाई है। सपोज ये वाई का अकाउंट है, ये एक्स का अकाउंट है, तो वाई का अकाउंट आपको वाई अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको लेना है, और एक्स अकाउंट बैलेंस और वाई अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको लेना है, बैलेंस बीडी कितना 0x ये आपको लेना पड़ता है। And into this trial balance, all ledger balances are taking from into this trial balance and make the total। जब आप टोटल प्रिपेयर करते हैं तो बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड क्या आती है आपकी, इक्वल आती है, एक्स 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 एक्स। दोनों साइड आपकी क्या होती है, टैली होती है, टैली होना चाहिए। ये टैली होती है तो उसका मीनिंग क्या होता है, आपकी लेजर पोस्टिंग बराबर है, या जो आप डेबिट और क्रेडिट करते हैं, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिट, यहाँ पे लिखते हैं आप नेम ऑफ द अकाउंट डेबिट, name of the account debited and name of the account credited, name of the account credited। वहां पे आप नए से लिखते हैं, नए से स्टार्ट वर्ड पंपिंग ब्रैकेट क्लोज करते और टोटल करते, पूरी टोटल होने के बाद उसको पोस्ट देंगे तो लेजर। डेबिट में तो डेबिट साइड में जाते हैं, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में राइट डाउन करते हैं, और बाद में उसका बैलेंस करते हैं। और जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये इंपॉर्टेंट है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको यहाँ पे लेना पड़ता है, और ये वाई का जो ब्रॉट डाउन है आपका वो क्रेडिट साइड लेना पड़ता है। ये आपको क्रेडिट साइड का बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट साइड का एक्स का है, डेबिट साइड में डेबिट बैलेंस लिखना है, वाई का क्रेडिट साइड में आपका है तो क्रेडिट साइड में आपको ब्रॉट डाउन यहाँ पे। ब्रॉट डाउन की जो टोटल आपकी है, जो बैलेंस आप ब्रॉट डाउन करके लेते हैं वो बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस के लिस्ट में आपको लेना पड़ता है। व्हेन यू क्लोज द बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स, जब आप लेजर अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो उसके जो ब्रॉट डाउन के बैलेंस है, डेबिट में ब्रॉट डाउन तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में खाली हो जाएगा ब्रॉट डाउन, क्रेडिट में ब्रॉट डाउन होता है वो लेजर अकाउंट का बैलेंस, तो आपको क्रेडिट में ब्रॉट डाउन का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिखना है और टोटल करना है। आपको एग्जाम में टोटल करके ट्रायल बैलेंस दिया जाता है और नेसेसरी एडजस्टमेंट आपको दिए जाते हैं इस ट्रायल बैलेंस के नीचे, और कहा जाता है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ अकाउंटेंसी। इट इज नॉट अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ आवर अकाउंटेंसी। इसके बाद में देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस की जो लिस्ट है आपकी, लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस जो आपके हैं, वो लिस्ट कौन कौन से है, हाउ टू प्रिपेयर। डेबिट में क्या क्या आता है, इज द फॉलो द रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। रूल्स क्या अकाउंटेंसी के, रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, रूल्स ऑफ अकाउंट के रूल्स कितने हैं, 3 रूल्स आपके। कौन से रूल, पर्सनल अकाउंट, आपका पर्सनल अकाउंट का रूल्स है, दूसरा अकाउंट है आपका रियल अकाउंट, तीसरा अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट। दैट इज द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के 3 रूल्स, इसके ऊपर मैंने डिटेल्स आपको, इसके ऊपर मैंने लेक्चर दिया हुआ, इन पर्सनल अकाउंट एंड इन पर्सनल अकाउंट्स। यहाँ पे खाली आपको देखना है यूज द फॉलो द रूल्स ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स व्हेन यू प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। व्हेन यू प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यूज द फॉलो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट balances.
इट में बी प्रिपेयर, ये जो ट्रायल बैलेंस आपको प्रिपेयर करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल, प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस जो आपका है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। व्हेन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, इट मे बी प्रिपेयर्ड ऑन द लूज शीट ऑफ ए पेपर, इट मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑफ द लूज शीट ऑफ ए पेपर, it will prepare on the loose sheet of a paper all the accounts with their debit and credit balances are listed serially। पूरी सीरियली यहाँ पे लिस्टेड आपके होती है डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की, लेजर अकाउंट्स की। The cash and bank balance as shown by the cash book also included in trial balance, ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड किया जाता है। मोस्टली ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर इन 31st मार्च at the end of the year, 31st मार्च को प्रिपेयर किया था। सी द डायग्राम ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st मार्च, ट्रायल बैलेंस जो प्रिपेयर किया था, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st मार्च, सपोज 2021, 31st मार्च 2021 सपोज आपका ईयर आपका 31st मार्च में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया था। बैलेंस द लेजर अकाउंट बैलेंस आर पुट इनटू दिस ट्रायल बैलेंस में पुट किया था। इसका डायग्राम बनाते हैं। इट इज द फॉर्म ऑफ जर्नल एज वेल एज लेजर की तरह इसका फॉर्मेट आपका हो गया। टी फॉर्म जो आप बोलते हैं, सिंपल जो आपका है, वर्टिकल फॉर्म एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म विच वी सी इनटू दिस लेक्चर्स। तो विच हाउ टू बैलेंस दिस फॉर्मेट, इसको किस तरह बैलेंस किया था। सपोज ये आपका बैलेंसिंग का एक चार्ट बनाते हैं। बैलेंसिंग समझिए आपका मीटर है, इसमें बैलेंस दें इनटू दिस डायग्राम, इसको बैलेंस आपको करना है। इस फिगर आपको बैलेंस करना पड़ता है टोटल। हाउ टू बैलेंस दें, वी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, एक डायग्राम निकालते हैं और बैलेंस करते हैं। ये आपका मीटर है, आपका ये आपको बता रहा है सिग्नल है, ये आपका फिगर है। क्योंकि हमें बैलेंस बता रहा है इक्वल, बोथ साइड्स आर इक्वल व्हेन यू सी द डायग्राम। ये डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे इक्वल आपकी साइड पे दिखनी चाहिए। डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंस आर इक्वल इनटू दिस ट्रांजैक्शंस। यू सी द ट्रांजैक्शंस ये मतलब डायग्राम प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस करके देखते हैं। एक आपका तराजू समझो, उसको बैलेंस करते हैं, इसको बैलेंस करके इसका प्रिपरेशन करते हैं। यू सी द डायग्राम फर्स्ट, यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं इसे। ये आपके डेबिट साइड, ये डेबिट बैलेंस आपके डेबिट बैलेंस, ये आपके क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस में क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आपके होते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ लेजर अकाउंट्स, ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। जो ऑल लेजर अकाउंट जो आप बैलेंस करते हैं उसका ब्रॉट डाउन का बैलेंस आपको यहां पे लेना है इनटू दिस क्रेडिट साइड। एंड ऑल ये आपके क्रेडिट बैलेंसेस है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का जो बैलेंस आपका होता है बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स, ऑल लेजर अकाउंट्स। एंड वी फॉलो द रूल्स ऑफ पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये रूल्स आपको फॉलो करना पड़ते हैं। पर्सनल अकाउंट्स का रूल्स, नॉमिनल डेबिट व्हाट्स कम्स इन क्रेडिट, व्हाट डेबिट द रिसीव, क्रेडिट द गिवन, नॉमिनल अकाउंट डेबिट और एक्सपेंसेस, लॉसेस क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम। एंड ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं, लॉसेस and expenses, losses and expenses right into this debit side. And all assets and debtors, all assets and debtors। यहां पर क्रेडिट साइड में all gains and income, all gains, incomes, liabilities and creditors। When you see this diagram, ये जब डायग्राम आप देखते हैं
इसके बेस बनाते हैं डायग्राम को। दैट इज द बैलेंस देन, ये दोनों क्या हो रहा है आपका बैलेंस हो रहा है, बैलेंस देन ये आपका बैलेंस आपका होना चाहिए, बोथ साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का जो बैलेंस आपका है बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। वी सी दिस डायग्राम, ये डायग्राम से आपको पता चलता है कि डेबिट बैलेंस ब्रॉडन जो आप लेते हैं और लॉसेस एक्सपेंसेस एसेट्स एंड डेटर्स आर शो डेबिट बैलेंस, ये आपके डेबिट बैलेंस शो करता है, डेबिट बैलेंस। और गेन्स इनकम लायबिलिटीज ये आपका क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस शो, क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस शो करता है, ये डेबिट बैलेंस शो करता है, ये आपका बेस है आपका डेबिट एंड क्रेडिट। यू सी द डायग्राम इनटू दिस, द बोथ साइड्स आर टैली, यहाँ पे आपको जो काटा है यहाँ पे आपको इक्वल बता रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है आपका डायग्राम में both sides are tally, debit balance and credit balances we see into this are equal, we see this diagram, this is into this diagram we see this becomes necessary because a separate cash account is not maintained in the ledger of bank column or appearing in the both sides of cash and bank columns. When you preparing the trial balance, जब trial balance हम prepare करते हैं तो यहाँ पे आपको जो इनटू दिस डायग्राम वी सी डेबिट साइड वी सी द लॉस एक्सपेंसेस एसेट्स एंड रियल। एसेट्स आर एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस वी सी द फॉलो द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स, वी फॉलो द रूल्स ऑफ पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट्स। डेबिट व्हाट्स कम्स इन रूल्स क्या आपके डेबिट के, डेबिट द रिसीवर, debit the receiver, debit all expenses and losses, debit what comes in, debit what comes in, debit the receiver, debit all expenses and losses, yeah these are rules out। and credit का क्या है, credit the giver, credit the giver, debit all expenses and losses, credit all gains and income, gains and incomes, and credit what goes out। We should follow the rules of personal, real, nominal, and follow the rules of personal, real, nominal। Debit the receiver, credit the personal account से, debit all expenses and losses nominal account से, debit what comes in, credit what goes out। We should follow the rules of expenses and losses when you preparing the trial balance. Trial balance is the list of debit and credit balances which balance them into this trial balance. It is a play important role in our accountancy. It is not account, it is a statement of expenses and losses. So form of trial balance जो आपका है इस बेसिस के ऊपर आप आके trial balance में prepare which we balance them, in short we balance them into both sides. Debit and credit balance are balanced. That balance value are put into this trial balance। ट्रायल बैलेंस में वो बैलेंस आप लेते हैं, वो बैलेंस आप लेजर में क्रेडिट में ब्रॉट डाउन होता है, क्रेडिट का बैलेंस आप यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, और डेबिट में आपका ब्रॉट डाउन यहाँ पे होता है, यहाँ पे उसका बैलेंस डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे, यानी डेबिट में आपका लॉसेस एक्सपेंसेस एसेट्स एंड डेटर्स आते हैं, और ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में पूरे गेन्स इनकम्स लायबिलिटीज एंड क्रेडिटर्स। दीज आर द क्रेडिट बैलेंसेस। गेन्स आपका क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा, इनकम रिसीव्ड आपका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज आल्सो शो क्रेडिट बैलेंसेस एंड ऑल क्रेडिटर्स आर आल्सो शो क्रेडिट बैलेंसेस एंड ऑल लोन्स। वी सी द लिस्ट ऑफ ट्रायल बैलेंसेस डेबिट एंड उसके लिस्ट में आपको देने वाला हूं। डेबिट बैलेंसेस कौन से होते हैं, एंड इन शॉर्ट आपको ध्यान में रखने के लिए ऑल एसेट्स अकाउंट शो डेबिट बैलेंस, ऑल डेटर्स आर डेबिट बैलेंस, ऑल लॉसेस जो आपके होते हैं डेबिट बैलेंस आपको लिखा जाता है, ऑल एक्सपेंसेस राइट टू द डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है ट्रायल बैलेंस के, ऑल गेन्स, ऑल इनकम, ऑल लायबिलिटीज एंड क्रेडिटर्स आर शो इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में शो किया जाता है, और डेबिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस के डेबिट में शो किया जाता है। उसमें लॉसेस एक्सपेंसेस एसेट डेटर्स आर शो डेबिट बैलेंसेस, गेन्स इनकम एंड लायबिलिटीज एंड क्रेडिटर्स आर शो क्रेडिट बैलेंसेस।
इस डायग्राम पे से आपको समझ आता है तो बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस आर इक्वल, या फिर क्या है आपका बैलेंस टैली हो रहा है, इक्वल हो रहा है, टैली मींस इक्वल, दैट इज कॉल्ड द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, इट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ये आपका ट्रायल बैलेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वी सी द फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस जो आपके, इट इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। इसकी जो वैशिष्ट्य इसका है, इट्स द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस which are extracted from various ledger accounts. Various ledger accounts से आपने उसको extracted किया था. It is the features of trial balances. It is a statement of debit and credit balances. Second feature आपको देखना है, it is list of debit balances. It is the purpose of establish the arithmetical accuracy. It is not a part of process of account. It is a statement. It is not account. It is only statement of accounts. ये accounts का only statement of अकाउंट्स आपका होता है। इट सर्व द लिंक बिटवीन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंसेस वी प्रिपेयर इन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बेसिस के ऊपर क्या करते हो, आप प्रिपेयर करते थे लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, विच इज द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। जो आपका फॉर्मेट है जनरल फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म जो आपका लेजर फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसके पहले आपने डिस्कस किए थे कि लेजर फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, उसके बारे में देखिए। लेजर फॉर्म ट्रायल बैलेंस, general form trial balance and ledger form trial balance. There are the two types of trial balance. जो टाइप्स आपके ट्रायल बैलेंस के, जनरल फॉर्म का एक ट्रायल बैलेंस आपका होता है, लेजर फॉर्म का आपका ट्रायल बैलेंस आपका होता है, विच इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की लिस्ट आपको देखना है। इसलिए आफ्टर पोस्टिंग ट्रांजेक्शंस, जब आप ट्रांजेक्शन पोस्टिंग करते हैं यहाँ पर, after posting the transactions to be respective ledger accounts, they are balanced, them a trial balance is drawn. तब आप ट्रायल बैलेंस क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, prepare the trial balance. When after the posting the trial balance is completed, ledger account balance is completed. After posting the transactions to be respective ledger accounts, there may be balance them and trial balance is drawn. A trial balance is a statement which show the list of debit and credit balances, list of accounts showing credit balance, credit side and debit balance into debit side. If double entry book entry principles which we follow the preparing of trial balance, which is the follow the rules of personal, real, nominal accounts. So, if double entry bookkeeping principles are strictly followed, the total of all debit balances must be agree the total of all credit balances. We should strictly follow the rules of double entry bookkeeping system introduced by लुका डिवार्गो पैसियालो इन 1494। जो पैसियालो ने जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की रूल्स फॉलो करने के लिए आपको कहा गया है, द फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम उसे कहा जाता है पैसियालो को। ही इंट्रोड्यूस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम टू होल वर्ल्ड। सो इफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग प्रिंसिपल्स आर स्ट्रिक्टली फॉलो, द टोटल ऑफ ऑल डेबिट बैलेंसेस, जो आपके होते हैं must agree the total of all credit balances. Both sides are equal. The total of debit balances equal to total of credit balances. Debit balances और credit balance की total आपकी equal आना चाहिए, agree आपकी होना चाहिए. Agree means equal. When total are equal, the trial balance will be tally. You see the strictly follow the rules of double entry bookkeeping system when you preparing the trial balance. If the double entry bookkeeping system is the double entry principles are strictly follow, the total of all debit balances and total of all credit balances, the total of all credit balances and total of all debit balances, this trial balance is prepare as under. इसलिए trial balance as on debit balances are all real accounts. Debit balances जो आपके होते हैं, debit balances जो आपके हैं trial balance के अंदर, show the debit balances जो आपके होते हैं और क्रेडिट बैलेंसेस जो आपके होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, विच इज दिस बैलेंसिंग टेबल, ऑल रियल अकाउंट्स मीन्स दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑल एसेट्स। रियल अकाउंट्स मीन्स एसेट्स अकाउंट, ऑल एसेट्स अकाउंट, लैंड, प्लांट, मशीनरी। अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल अकाउंट ऑफ expenses and losses. It is a rule of nominal accounts, and all personal accounts
showing debit balances, or personal account showing debit balances, all personal account showing debit balances, and all debtors accounts. So into the debit balances we see the all real accounts, all accounts are expenses and losses, and all personal accounts also show the debit balance. Personal accounts क्या आपके debit balance show करते रहते हैं, and a real account, personal accounts, वैयक्तिक खाते जो आपके होते हैं real account and personal accounts show the debit balances, and all debtors accounts also show the debit balances that on the trial balance debit side. क्रेडिट साइड में जो आपके होते हैं all आपकी जो गेन्स एंड इनकम आपके जो होते हैं all कैटेगरीज जो आपके यहाँ पे दिए हुए all accounts of income and expenses, all accounts of income and gains, all account of income gains, all account of liabilities, and all account of debtors, all account of creditors. Credit side आपका होता है, it is all creditors. Right on the credit side is the credit balances, and all personal accounts showing credit balances. All personal account, those accounts are show credit balance. All personal accounts, those show credit balances. जो पर्सनल अकाउंट आपके क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, राइट डाउन टू द क्रेडिट साइड ऑफ दैट ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस का आपको क्रेडिट साइड में आपको राइट डाउन करना है. ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में क्या आता है, ऑल अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड गेन्स, all accounts of liabilities, all accounts of creditors, personal accounts, those personal accounts are show credit balances right down to the trial balance credit side. Debit side में all personal accounts are show in debit balance. जो debit balances personal account show करते हैं, and we see the follow the rules of again personal, real and nominal account. PRN जो rules आपके हैं, we follow the rules of accountancy when we preparing the trial balance. We see the स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के रूल्स आपको स्ट्रिक्टली आपके फॉलो करना पड़ते हैं. ऑब्वियसली प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ बेसिस ऑफ लेजर बैलेंसेस. ये आपका ट्रायल बैलेंस के बारे में अपनी डिस्कस किया. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस आपके हैं. ग्रॉस ट्रायल बैलेंस आपका है और नेट ट्रायल बैलेंस. यहाँ पे दो ट्रायल बैलेंस के आपके टाइप्स है. पहले ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस जो आपका है इसमें ग्रॉस ट्रायल बैलेंस एंड नेट ट्रायल बैलेंस. टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस में दो मिनट डिस्कस करते हैं. टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस की जो टाइप्स है आपके, देयर आर टू टाइप्स. कितने टाइप्स आपके? टू टाइप्स है. टू टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. फर्स्ट आपका है, फर्स्ट टाइप आपके टू टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, एंड सेकंड है आपका नेट ट्रायल बैलेंस. ग्रॉस ट्रायल बैलेंस एंड नेट ट्रायल बैलेंस. There is two types of trial balance. Trial balance की two types आपके हैं, gross trial balance and net trial. तो gross trial balance क्या होता है? In this types of trial balance, total of debit side, total of debit side, या फिर total of debit side, total of debit side. Debit side में क्या होता है आपका losses और increases, assets and debtors आपके debit side में होते हैं. all real accounts and all personal accounts, those show the debit balances. And gross trial balance means, it means in this type of trial balance, the total of debit side of particular column is shown in the debit column of the trial balance, and total of credit side particular column is shown the credit side column of the trial balance. It is not a common use as it does not disclose the balance of cash. यह आपका ग्रॉस ट्रायल बैलेंस है. नेट ट्रायल बैलेंस क्या होता है? In these types of trial balance, only balance of each ledger accounts, only balance of each ledger accounts, only the balance of each ledger accounts are shown against its names. It is and show the credit balance, then it is balance is recorded in the credit column, the column, and vice versa. This total trial balance is used for practice. Methods of preparing trial balance. ट्रायल बैलेंस की जो मेथड्स है, मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस की जो मेथड्स आपके, यहां पर भी ट्रायल बैलेंस की जो टाइप्स है, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस एंड नेट ट्रायल बैलेंस,
is the list of debit and credit balance is write down into this net and trial balance. Methods of preparing trial balance, there are two methods आपके इसका, two methods उसके trial balance के. ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आते हैं. हाउ मेनी मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस? नियर बाय टू मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस के टू मेथड्स आपके. देयर आर टू मेथड्स आर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. वर्टिकल मेथड्स, वर्टिकल, और इसे कहा जाता है जर्नल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस. जनरल फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो जनरल एंट्री का आपका फॉर्मेट है, जनरल फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस. एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म आपका एक होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म, हॉरिजॉन्टल फॉर्म, या उसे कहते हैं लेजर फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस. यानी जनरल फॉर्म, जो जनरल एंट्री का आपका स्पेसिमन, जनरल फॉर्म में क्या होता है आपका, डेट का कॉलम आपका होता है, पर्टिकुलर आपका होता है. इसके बाद आपको लेजर को पोस्टिंग के लिए एलएफ का कॉलम होता है, डेबिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज. इट इज कॉल्ड द लेजर फॉर्म ऑफ, जनरल फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस. लेजर फॉर्म में क्या होता है, डेबिट साइड में 4 कॉलम आपके होते हैं और क्रेडिट साइड में आपके 4 कॉलम होते हैं. इट इज कॉल्ड लेजर फॉर्म, विच इज द फर्स्टेशन ऑफ लेजर. इसके पहले आपने लेजर फॉर्म आपने देखी. लेजर फॉर्म में 4 कॉलम डेबिट में होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट. डेबिट और क्रेडिट साइड पे 4 कॉलम आपके होते हैं. दिस इज द लेजर फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस. इसलिए लेजर फॉर्म को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड वर्टिकल फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस. ये ट्रायल बैलेंस के टाइप्स आपके, 2 टाइप्स आपके यहाँ पे ट्रायल बैलेंस होते हैं. तो यूटिलिटी ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की जो यूटिलिटीज आती है, इसकी उपयोगिता क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस 2 है, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस एंड नेट ट्रायल बैलेंस. एंड मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस आर 2. वर्टिकल ट्रायल बैलेंस उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म, अनदर वर्ड में कहा जाता है जर्नल फॉर्म आपका है. जो जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट आपका है, उस फॉर्मेट में आपको ट्रायल बैलेंस का एग्जाम में क्वेश्चन आता है. जर्नल का फॉर्म क्या है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. लेजर का फॉर्मेट क्या आपका, लेजर के कॉलम जो आपके होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, ये 4 कॉलम. क्रेडिट में सेम 4 कॉलम. डेबिट एंड क्रेडिट में जो कॉलम आप प्रिपेयर करते हैं लेजर पोस्टिंग को, वो लेजर का फॉर्म है. दैट इज द टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. उस टाइप में आपका ट्रायल बैलेंस के बैलेंस आपको एग्जाम में आते हैं या वर्टिकल फॉर्म में आते हैं, यानी जर्नल फॉर्म में आपके एग्जाम के अंदर आते हैं. इससे यूटिलिटी ऑफ ट्रायल बैलेंस जो आपकी है, ट्रायल बैलेंस की उपयोगिता क्या है? इट इज शो बैलेंस ऑफ डिफरेंट लेजर अकाउंट्स. डिफरेंट लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस में आते हैं. यूटिलिटी ऑफ, इसकी उपयोगिता है ट्रायल बैलेंस की. डिफरेंट लेजर ऑफ बैलेंसेस आर पुट इनटू दिस ट्रायल बैलेंस. सो इट इज द फर्स्ट यूटिलिटी ऑफ ट्रायल बैलेंस. इट शोज द बैलेंस ऑफ डिफरेंट लेजर अकाउंट्स. It proved the arithmetical accuracy of books of accounts. Arithmetical accuracy we see into this trial balance, and it helped to prepare final account of business. It helped the final accounts. Final accounts prepare करने में क्या करता है? Help आपका करता है. That is the utility of trial balance when you preparing the aim of preparing trial balance. जब preparation of trial balance को prepare किया जाता है, इसकी utilities business के लिए भी है. Arithmetical accuracy आपको मालूम होती है इस ऊपर से. इट शो द बैलेंस ऑफ डिफरेंट लेजर अकाउंट. इट इज यूटिलिटी ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस की जो यूटिलिटीज आपकी है, उपयोगिता उसे कहते हैं. दैट इज फर्स्ट यूटिलिटीज आपकी है, इट हेल्प, यह हेल्प करता है, आपको मदद करता है. इट शो द डेबिट बैलेंस, इट शो द डेबिट बैलेंस, it show the debit balance of all ledger accounts, it show the, it show that all ledger, it prove the different arithmetical accuracy. It prove the arithmetical accuracy. It proves the arithmetical accuracy. It proves the arithmetical accuracy of books of accounts, and it helped to prepare final accounts of business. It helped to prepare final accounts. Final accounts जब prepare करते हैं, it helped to prepare final account of business. Final account of business.
दैट इज द यूटिलिटी ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस क्या है, यूटिलिटीज आपके ट्रायल बैलेंस के पे शो करते हैं। इसके बाद मुझे नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है कि लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस जो आपके होते हैं, लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, द प्रोफार्मा ऑफ एंट्रीज इन ट्रायल बैलेंस, द प्रोफार्मा ऑफ एंट्रीज इन ट्रायल बैलेंस, द प्रोफार्मा ऑफ एंट्रीज इन ट्रायल बैलेंस, प्रोफार्मा ऑफ एंट्रीज इन ट्रायल बैलेंस। ये था आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में लॉस, एक्सपेंसेस एंड असेट्स एंड डेटर्स, क्रेडिट साइड में गेन्स, इनकम, लायबिलिटीज एंड क्रेडिटर्स। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस की जो लिस्ट आपकी है वो जाके देखते हैं इसके ऊपर डिटेल्स में। लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑफ प्रोफार्मा एंट्रीज इन द ट्रायल बैलेंस, प्रोफार्मा एंट्रीज, प्रोफार्मा एंट्रीज इन द ट्रायल बैलेंस, प्रोफार्मा एंट्रीज इन द ट्रायल बैलेंस, इन द ट्रायल बैलेंस। ये आपको इंपॉर्टेंस डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस की लिस्ट आपकी हेल्प करेंगे व्हेन यू प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। आपको डेबिट बैलेंसेस पूरे लिखना है, डेबिट बैलेंसेस, डेबिट बैलेंसेस, डेबिट बैलेंस आपको डेबिट साइड में और डेबिट बैलेंस आपको मालूम है लॉसेस है आपका, इसमें बाद में एसेट्स आपके डेटर्स है, शो द डेबिट बैलेंसेस। एलएफ which is preparing the form of ledger folio, LF that is ledger form में प्रिपेयर करना है, अमाउंट इन रुपीज। सेकंड देंगे क्रेडिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस, LF लेजर फोलियो। इसके बाद आपको प्रिपेयर अमाउंट इन रुपीज। ये प्रोफार्मा प्रिपेयर करो और एक लिस्ट आप प्रिपेयर करेंगे। डेबिट बैलेंसेस कौन से होते हैं और क्रेडिट बैलेंसेस कौन से होते हैं। डेबिट बैलेंसेस ऑल एसेट्स जो आपके होते हैं, ऑल एसेट्स जो आपके होते हैं, ऑल एसेट्स अकाउंट, ऑल एसेट्स शो डेबिट बैलेंसेस, ऑल लायबिलिटीज शो क्रेडिट बैलेंसेस। विच इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की आप लिस्ट देखते हैं, पूरी लिस्ट, लिस्ट ऑफ डेबिट बैलेंस एंड लिस्ट ऑफ क्रेडिट बैलेंस। या इसके बाहर के शब्द आप पाते नहीं, लिस्ट ऑफ क्रेडिट बैलेंस, लिस्ट ऑफ डेबिट बैलेंस, लिस्ट ऑफ क्रेडिट बैलेंस। डी आर फॉर डेबिट, डेबिट में लिखो गुडविल, पेटेंट्स, गुडविल, पेटेंट्स, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। उसके बाद में लिखो प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस यानी भवन। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लूज टूल्स, फर्नीचर, लूज टूल्स, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स आपकी जो आपके बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, मोटर कार, कैश इन एंड कैश एट बैंक, मोटर कार, कैश इन एंड कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश इन एंड कैश एट बैंक, कैश इन एंड कैश एट बैंक, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लिस्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। राइट डाउन टू द डेबिट साइड। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, फैक्ट्री लाइटिंग है, फैक्ट्री के आपकी चार्जेस, आपके वर्कमैन सैलरी है, वेजेस है, आपका परचेजेस है, आपके ओपनिंग स्टॉक है, इट इज शो डेबिट बैलेंसेस। ऑल लायबिलिटीज, ऑल लायबिलिटीज एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। और जनरल रिजर्व जो आपके, और कैपिटल आपका जो सेल्स कैपिटल, जनरल रिजर्व,
all funds, all loans are right down to the credit side, that is credit balances आपके होते हैं. Provision for bad debts, loan taken from, loan given from, loan taken from, loan taken from, loan given from, लोन टेकन फ्रॉम, लोन गिवन फ्रॉम, कमीशन आपका जो आपका है, कमीशन आपका जो रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव, ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस राइट डाउन टू द डेबिट बैलेंस. ये आपका डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस के आपके डेबिट बैलेंस होते हैं, ऑल इनकम एंड गेन्स के आपके क्रेडिट बैलेंस है. सेल्स आपका क्रेडिट आपका होता है, कैपिटल आपका क्रेडिट बैलेंस होता है. ये इंपॉर्टेंस वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ, क्रेडिट बैलेंसेस इनके हमेशा होते हैं, ये आपको एग्जाम में आते हैं हमेशा. इसके अलावा आपके फैक्ट्री रेंट, टेलीफोन चार्जेस, जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस आपके होते हैं, और एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस के आपके हेड है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, लूज स्टोर है, कैरेज है, टेलीफोन चार्जेस है, मोबाइल बिल चार्जेस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, इट इज आवर एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस राइट डाउन टू द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. दैट इज द प्रोफार्मा ऑफ एंट्रीज बैलेंस. ये आपके प्रोफार्मा के ये पूरे आपके यहाँ पे राइट डाउन किया जाता है. इसलिए स्पेयर पार्ट्स वगैरह वगैरह जो आते हैं, दैट इज टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस आर इक्वल. जब आप टोटल कर देते बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड आपकी इक्वल आती है, इट इज इक्वल, दोनों की टोटल आपकी सही क्या आती है. बाद में इसके बाद में आपको एडजस्टमेंट दिए जाते हैं, इसके बाद में आपको नीचे एडजस्टमेंट दिया जाता है. एडजस्टमेंट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन. एडजस्टमेंट, इसके बाद में एडजस्टमेंट होते हैं. एडजस्टमेंट का आपका सेकंड इफेक्ट आपको करना है, एवरी एडजस्टमेंट जो आपके होते हैं, every adjustment have must two-fold effect. एडजस्टमेंट के दो फोल्ड इफेक्ट आपको होना चाहिए. एक डेबिट में हुआ तो क्रेडिट में आपका उसका सेकंड इफेक्ट आपको होना चाहिए. प्लस हुआ तो सेम साइड, एक अगर एडजस्टमेंट प्लस होता तो सेम साइड, माइनस कर दे तो अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ और हाइड, आपको अपोजिट साइड ऑफ और हाइड, अपोजिट साइड ऑफ और हैंड राइट डाउन. प्लस हुआ तो सेम साइड में आपको हैंड के आपको प्लस करना है, माइनस हुआ तो अपोजिट साइड ऑफ और हैंड. व्हेन यू सी द फाइनल अकाउंट, जब फाइनल अकाउंट करेंगे तब आपको समझ आएगा प्लस और माइनस क्या होता है. प्लस किया तो सेम साइड ऑफ योर हैंड एंड माइनस हुआ तो अपोजिट साइड ऑफ योर हैंड. दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड प्रोफार्मा ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस के डेबिट में ऑल डेबिट बैलेंस आप कहते हैं, उसमें ऑल एसेट्स अकाउंट, ऑल पर्सनल अकाउंट, दोज आर शो द डेबिट बैलेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लोन टेकन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर राइट डाउन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. एंड क्रेडिट साइड में आपके ऑल लायबिलिटीज और क्रेडिट बैलेंसेस, सेल्स, कैपिटल, जनरल रिजर्व, फंड्स, लोन्स, loan given, all income and gains are right down to the credit balances. It is credit balances show in trial balance credit side. Credit side में आप करके show करना पड़ता है. So students, this is the pro forma and meaning of trial balances. ये आपका trial balance का pro forma meaning और importance of trial balance, utility of trial balance and methods of trial balance we discuss now into these lectures. ये था आपका ट्रायल बैलेंस के ऊपर एक थ्योरेटिकल पार्ट्स, मैंने आपको थ्योरी बताई, इसे 23 पत्रक कहा जाता है. ट्रायल बैलेंस मीन्स लिस्ट ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस. इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए अकाउंट. ये आपका अकाउंट में होता है तो ये स्टेटमेंट होता है. ये सीधा अरिथमेटिकल एक्यूरेसी व्हेन यू प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस. दिस इज द फाइनल, इट इज हेल्प टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आपको ये हेल्प करता है. इसलिए ट्रायल बैलेंस आप लेजर बैलेंस के आधार के ऊपर आप प्रिपेयर करते हैं. यानी पहले जनरल एंट्री करते हैं, उसके बाद में लेजर पोस्टिंग करते हैं. लेजर पोस्टिंग का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, डेबिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो डेबिट में आप ट्रायल बैलेंस लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन. लेजर के क्रेडिट बैलेंस में आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो लेजर के क्रेडिट में आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का अमाउंट लेंगे उस अकाउंट का और प्रिपेयरिंग करेंगे ट्रायल बैलेंस. और ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेज ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ और अकाउंटेंसी. इसके बेस के आधार पर आप फाइनल अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं. इट्स लास्ट स्टेज प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड देन अप टू बी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स. उसमें प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट्स. द नेक्स्ट जो आप देखने वाले लेक्चर उसमें देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ये एग्जाम में आपको 12 मार्क्स के लिए आता है. इसी के ऊपर आपको 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है. आपको ट्रायल बैलेंस दिए जाएंगे, बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट के बैलेंस आपको दिया जाएगा, कहा जाएगा कि प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. उसके आधार पर ट्रायल बैलेंस आपको प्रिपेयर कर, आपको मालूम चाहिए कि डेबिट बैलेंसेस कौन से होते हैं और क्रेडिट बैलेंसेस कौन से होते हैं. डेबिट बैलेंस ऑल एसेट्स अकाउंट्स शो डेबिट बैलेंस,
ऑल आपके जो एक्सपेंसेस है ये आपका डेबिट बैलेंस शो करता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं वो डेबिट बैलेंस शो करते हैं। लायबिलिटी जो आपके होती है ऑल क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं। सेल्स आपका क्रेडिट बैलेंस शो करता है, कैपिटल आपका क्रेडिट बैलेंस शो करता है, और देन आफ्टर लोन जो आपके वो क्रेडिट, रिजर्व फंड जो आपके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, लोन्स आपके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। यानी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आपको एग्जाम में ट्रायल बैलेंस के ऊपर आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। आपको ये बैलेंसेस दिए जाते हैं, एक लिस्ट आपको दी जाती है और कहा जाता है कि उसका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करो। तो आपको डेबिट बैलेंसेस कौन से अकाउंट के होते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस कौन से होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए ऑल एसेट्स शो डेबिट बैलेंसेस एंड ऑल लायबिलिटी शो क्रेडिट बैलेंसेस। लायबिलिटीज आपकी मालूम है, लिस्ट आपको मालूम है, कैपिटल, सेल्स है आपकी, ऑल फंड्स है, क्रेडिटर्स आपका, बिल्स पेबल है आपके, ऑल लोन्स उसमें, ऑल फंड्स आपके रिजर्व फंड्स, इट इज आवर लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो लायबिलिटीज आपकी होती है। एडवांस जो आपका प्रीपेड जो का एसेट्स आपकी होती है। इसलिए ऑल रियल अकाउंट्स आर शो डेबिट बैलेंस। लैंड, बिल्डिंग, पेंट, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट्स, प्रीमाइसेस आपका है, मोटर कार आपके, कैश इन एंड कैश एट बैंक, लोन गिवन दैट इज शो, डेटर्स आपका है, बिल्स रिसीवेबल आपके है, डेटर्स आपका है, दैट इज आवर शो डेबिट बैलेंसेस। so डेबिट बैलेंस आपके होते हैं, इट इज आवर एसेट्स शो डेबिट बैलेंसेस एंड लायबिलिटी शो क्रेडिट बैलेंसेस। तो आपका एसेट्स और लायबिलिटीज के पहले के टॉपिक में आपका हुआ है, जब जनरल एंट्री आपने देखे, उसके बाद डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की theory जब देखे, उसमें आपने पूरे डिटेल्स में देखे टर्मिनोलॉजी वर्ड जो आपके, तो टर्मिनोलॉजी वर्ड्स में कौन सा बैलेंस शो करता है उसके बारे में डिस्कस किए थे ट्रायल बैलेंस। इसके उस बेसिस के आधार पर लायबिलिटी और एसेट्स की लिस्ट आप सामने रखिए, उसको थोड़ा याद किए, आपको समझ में आ गया एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या होती है। लायबिलिटी शो क्रेडिट बैलेंस, एसेट्स शो ऑलवेज डेबिट बैलेंस। ये आपको एग्जाम के अंदर अभी आपको ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है, उसके बेस के आधार पर आप प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट्स। तो स्टूडेंट्स ये था आपका थ्योरेटिकल पार्ट ट्रायल बैलेंस। रुकते हैं यहां पर, नेक्स्ट में देखेंगे प्रॉफिट और फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स एंड प्रो फॉर्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रो फॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रो फॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट्स। इसमें भी आपको एसेट्स लायबिलिटी बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस के बेसिस के ऊपर आपको उसको प्रिपेयर करना है, ये 3 अकाउंट को। तो ठीक है, रुकते हैं यहां पर। थैंक यू।